वेल जॉब्स बहुत कम है, स्पेशली यू आर इन एन IT सेक्टर, दैट AI विल टेक योर जॉब राइट. सो जेनजीज को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स में पीपल आर रियली स्पेंडिंग टू मच टाइम एंड आजकल लोगों की सैलरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है. वेलकम टू माई चैनल. सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट दिस वीडियो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, but then I thought that if I will have a certain number of subscribers, then only I'm going to create this video, but I think that is not going to happen anytime soon. So I thought that I can just put it out. Let's just create this video now and future में देख लेंगे अगर कुछ और point हुए then I'll create. Now I generally create videos in English, but I think that this video is specifically for the Indian market, for the Indian audience, and I don't have a very big audience right now and most of my viewers are from India, so I think that I should be creating this video in Hindi so that it will reach out to many people out there. So yeah, I'm still speaking in English, I know, but I'll try कि मैं अब हिंदी में बात करूँ so that बहुत ज़्यादा लोगों तक की वीडियो पहुँच पाए and they should be able to understand it. I know my target audience is educated one because I'm creating videos related to business, related to career, so I expect कि उन लोगों को English आती होगी and it is very I speak in a very Indian accent, so that is not even difficult to understand. But in this video I'm going to try to speak Hindi as well here and there so that if people who don't know English they can also learn from my video. So without much further ado, let's just get started. Let's just first start with the Indian job market. So yes, I won't say that वो बहुत अच्छा है. It is somewhere in the middle or lower middle. I'm not just talking about the IT sector. I have friends in different domains, whether it is civil, whether business हो, textiles हो. So काफ़ी सारे friends different domains में they work, right? And I think that काफ़ी domains में market is pretty low, middle या low पे है. It is not definitely on the higher side. People are seeing that cash crunch है थोड़ा. So yeah, it is there. And I have been following videos and I saw many people are posting comments like will AI take their job, or I have seen many videos, so I would just like to give my opinion on that. So yes, there are few jobs which are definitely can be done easily by the AI, and I think that content creation या फिर प्लानिंग और इस तरह के जो जॉब्स है वो काफ़ी ईजीली इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग चैट जीपीटी विद अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट वो ईजीली वहाँ पे कोई लोग वहाँ पे कर सकते हैं. बट दैट डज इट मीन कि वो आपका जॉब ही चला जाएगा? आई गेस नॉट, राइट. कुछ इवॉल्व हो सकता है, कोई designation evolve हो सकता है, right now many people are asking that do you know Excel and ChatGPT or something like that, so you have to keep learning no matter what. Yes and no as well in this part. AI शायद एक हद तक आपकी जॉब ले सकता है बट सब कुछ वो नहीं कर सकता है, राइट. ह्यूमंस आर नीडेड राइट नाउ, तो इट इज़ जस्ट दैट आपको थोड़ा इवॉल्व होना पड़ेगा. थोड़ा जो नए टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो भी UPSC का ट्राई कर रहे हैं. वेल नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट जस्ट गिव योर सेल्फ अ ईयर एंड 2, और इफ़ यू थिंक कि आपका नहीं हो सकता है ना, देन I think you should try again and again. There is nothing wrong in that. But at least आपको साइड में एक जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए बिकॉज वो जो गैप आता है स्टडिंग में और जॉब में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर इन केस आपकी जॉब नहीं लगी देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन द लेटर पार्ट, राइट. सो अगर आपको जॉब मिल रहा, जस्ट ट्राई फॉर UPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर अ ईयर और 2. मिलता है तो वेल एंड गुड. इफ नहीं मिलता है तो देन यू कैन ऑल्सो स्टिल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स बाय वर्किंग साइड बाय साइड, एंड मेनी पीपल डू दैट. बट ज़्यादा गैप लेने का कोई सेंस मुझे नहीं लगता है. एक आध साल इज स्टिल फाइन. एंड आई हैव बीन वॉचिंग अमित सागवान's वीडियो about middle class and how to level up or things like that. So मैं उनकी बहुत videos देख रही हूँ कुछ टाइम से, and one thing that I would really like to highlight, so this is not my thought, it is definitely his thought, credit goes to him, just I want to tell people. So उन्होंने ऐसा बोला है कि मिडिल क्लास ही क्यों रह जाता है. So जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, उनके बच्चों के लिए जॉब ढूंढना या फिर उनका करियर स्टार्ट करना, दे हैव टू डू इट ऑल फ्रॉम स्क्रैच, राइट. उनके पेरेंट्स सिर्फ उनको पढ़ा देते हैं एंड सब कुछ उनको वापस से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट. उनकी ही वही 15,000 सैलरी से 20,000 सैलरी से जनरली दे हैव टू स्टार्ट. वेयरएज जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, सो उनके लिए एक ऑलरेडी सेटअप किया हुआ होता है सब कुछ. सो थिंग्स आर वेरी ईजी फॉर देम.
हम लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो हिज कमेंट ओनली, हम लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं इन बॉलीवुड, इन पॉलिटिक्स, बट इट इज़ एवरीवेयर. एंड व्हेन आई हर्ड दिस थिंग in the video, I understood that yes, my boa is a teacher and she wants her daughter to be teacher. My grandfather was teacher and he wanted his daughter to be teacher. So ये चीज़ होती है. मेरा एक फ्रेंड है जिसके डैड का बिजनेस है, and he also wanted that उनका बच्चा भी बिजनेस करे. My father used to work in government sector. He still is working with the central government of India, and he is still telling me that तू गवर्नमेंट एग्जाम दे, तू यूपीएससी की एग्जाम दे. सो इट जनरली इज एवरीवेयर. व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड थिंक दैट व्हाट योर फैमिली इज डूइंग. आप क्या कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. जस्ट ऐसे ही बोल देना कि आई एम लोअर मिडिल क्लास, आई एम अपर मिडिल क्लास. इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू हैव टू थिंक दैट आपकी फैमिली अपर मिडिल क्लास है, बट आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप शायद लोअर में फॉल करोगे, बिकॉज विथ टाइम इफ़ योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग देन ओनली यू आर वर्किंग, राइट. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. आई वुड रियली रिकमेंड टू वॉच हिज वीडियोज़, सो यू विल कम टू नो वॉट आई एम टॉकिंग, एंड आई थिंक ही विल बी द बेस्ट पर्सन to explain such things. In my video I just want to say that it is not कि जो आपकी फैमिली ने किया, आपके पेरेंट्स ने किया, आप वो चीज़ करो. इफ़ यू वांट टू डू इट जस्ट डू इट, बट इफ नॉट एनालाइज करो कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू. एक और चीज़ है आजकल के लोगों के साथ. सो ऐसा नहीं है कि जेन ज़ी के साथ ही है, वो हमारे एज के लोगों के साथ भी है. लाइक स्टार्टअप करते हैं. आई ऑल्सो गो विद द सेम सेंटर. यार कुछ तो करना है, खुद का कुछ करना है. बट आई थिंक दैट स्टार्टअप करना है वेल एंड गुड, बिकॉज एज आई सेड बिजनेस इज गुड अगर आप करते हो तो, बट उससे पहले जॉब करना इज़ वेरी नेसेसरी. बिकॉज आई नाउ नो कि हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क. HR कैसे वर्क करता है, सेल्स कैसे वर्क करता है, एंड इफ़ यू आर हैविंग कस्टमर्स तो ही आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा, वेदर यू आर इन अ सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट इंडस्ट्री. सो सेलिंग मार्केटिंग इज अ कोर थिंग. देन कम्स द टेक्निकल थिंग. When I say technical, it doesn't mean कि कोडिंग आनी चाहिए. It means कि आप जो भी बिजनेस करो उसकी टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए. सो ये चीज़ तभी पॉसिबल है when you are doing the job. Even if your father is having a business, I would really recommend कि वहाँ सेठ के जैसे बैठ जाने से बेटर है just go and work with him side by side and then you can take it over. Talking about the Gen Z, one more thing that when I started working, my salary was just 15,000, and when now people are coming, they are asking for 50,000. I understand कि उस टाइम में और आज टाइम में 6 साल का डिफरेंस है, एंड सैलरी बार्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है. इट गोज हैंड इन हैंड, राइट. बट 15 का वो लोग 60-70 से नीचे मानते ही नहीं है. एंड आई थिंक इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आपको आई नो दैट कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, एंड स्टिल इफ़ यू आर आस्किंग 50-60,000 देन वाई शुड आई पे यू, राइट. एंड दैट्स द रीज़न कि जेन ज़ी आर रियली स्ट्रगलिंग. वो जो आई एम नॉट आस्किंग कि आप 70,000 लो, मिल रही है, कंपनीज दे रही हैं, बट दैट इज जस्ट फॉर द 5% ऑफ पीपल. बाकी के 95% आर फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज, फ्रॉम मिडिल टायर कॉलेजेस और बहुत छोटे शहरों से. सो आई एम सेइंग कि जो भी सैलरी मिल रहा है उससे जस्ट स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट गेनिंग द एक्सपीरियंस. एंड आई हैव सीन मेनी पीपल जो कम सैलरी से स्टार्ट करके दे हैव ग्रोन अ लॉट. तो दैट ऑल्सो यू कैन. मैंने सेल्स एंड कस्टमर की बात की. सो जस्ट अ क्विक एडवाइस फॉर यू. अगर आप सेल्स डोमेन में काम करते हो, कस्टमर सक्सेस डोमेन में काम करते हो, या फिर इफ़ यू आर फेसिंग क्लाइंट इन एनी बाय एनी डेजिग्नेशन, ऑलवेज थिंक दैट कि दैट इज़ योर कंपनी और आप उस तरह से क्लाइंट से बात करो. एंड इफ़ यू विल डू दैट ना, आई एम प्रिटी श्योर दैट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. आई नो वो लोग आपको इतनी सैलरी नहीं देते कि आप अपनी कंपनी सोच के काम करो, बट कभी अगर ज़रूरत पड़े तो सोचो. इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. एंड आई थिंक दैट जब हम सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करते हैं, वन मोर थिंग ऑल्सो कम्स अप इज नेटवर्किंग. आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई रियली स्टिल स्ट्रगल विथ नेटवर्किंग. बट अगर आप वो चीज़ कर लेते हो तो, एंड इफ़ यू क्रैक दैट कोड ना, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर. तो नेटवर्किंग जस्ट स्टार्ट बिट बाय बिट, बट लर्न नेटवर्किंग. इट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग विथ माई फ्रेंड्स द अदर डे, एंड सम पीपल वर सेइंग कि मतलब वो नीट के बारे में कुछ बात हो रही थी, एंड दे वर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. वेल येस, उसमें तो बहुत ही बड़ा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बेचारे बच्चे इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं. एंड नीट इज़ डेफिनेटली द, मतलब बहुत टफ होता है एग्जामिनेशन, और उसमें इतना बड़ा लीकेज होना एंड जो कुछ भी हुआ, इट इज़ रियली बैड. बट व्हेन इट कम्स टू द जॉब सेक्टर, आई डोंट थिंक कि सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना या सिस्टम को ब्लेम करना इज़
इज़ राइट, बिकॉज सबकी ही कहीं ना कहीं गलती है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, सो हेंस कंपटीशन ज़्यादा है, सो कंपनीज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। उनको पता है कि एक जॉब करने के लिए 10 लोग यहाँ पे खड़े, तो वो लोग ज़्यादा क्यों सैलरी देंगे, कोई नहीं देगा, राइट। अगर डिमांड है और सप्लाई भी उतनी है तो उस चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, बट हाँ अगर डिमांड है और सप्लाई थोड़ी कम है तो शायद सैलरी शायद ज़्यादा होती है। दैट्स द रीज़न दैट पीपल आर मूविंग अब्रॉड, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे जो उनकी स्किल्स है, जिसकी डिमांड है उसके हिसाब से दे आर चार्जिंग। बट इंडिया में वो चीज़ आई थिंक बहुत टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुँचने में। एंड उसके साथ साथ आई थिंक एजुकेशन इज़ डेफिनेटली द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग। मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता, आई थिंक सबका ऑलमोस्ट यही हाल है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ रियली ज़ीरो। एंड अगर वो पॉसिबल है तो आई थिंक थिंग्स आर मच बेटर। उसके अलावा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये तो हर गवर्नमेंट आती जाती है, एंड मतलब हर टाइम यही सिनेरियो है वो, जो कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट सबकी ही कहीं ना कहीं आई थिंक आई वोंट से कि गलती है या कोई रॉन्ग है, बट सबका कुछ ना कुछ पार्ट है उसमें, राइट। एंड अभी के जॉब मार्केट के हिसाब से आई हैव सीन दैट मेनी कंपनीज आर लेइंग ऑफ। सो मैं जस्ट वन लास्ट एडवाइस टू यू दैट अगर आप किसी जॉब में हो ना, तो ट्राई टू वहाँ पे स्टेबल रहने का ट्राई करो, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करो, बिकॉज अगर आप नई कंपनी में जाओगे उनकी भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होंगे, और अगर वहाँ पे भी सेम सीन रहा तो दे विल ऑल्सो ले ऑफ। सो जस्ट ट्राई टू स्टिक वेयर एवर यू आर टिल द मार्केट सेटल्स इन, और एक बार जब वो हो जाता है देन थिंक टू स्विच इट ऑफ। ऑफकोर्स every scene is different, every company is different, every individual is different, but this is just my advice. So yeah, that's it for today's video, and I really like chatting about that, how I feel about the Indian market, Indian job market, business, employees, career and everything. So even if you're not working, just try to get some skills right now, because few years down the line skills are very important and communication is very important. Yeah, so I'll just see you in my next video. Bye.